بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ پہاڑوں، دریاؤں اور سرسبز میدانوں کے درمیان ایک وسیع اور خوشحال سلطنت آباد تھی، جس کا نام نور آباد تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ کا نام بادشاہ سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ دل کے بہت نرم، رحم دل اور انصاف پسند حکمران تھے۔ رعایا ان سے محبت کرتی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ مگر ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے بادشاہ اکثر پریشان رہتے تھے۔ وہ مسئلہ تھا دانائی کا۔ بادشاہ جانتے تھے کہ صرف نیک دل ہونا کافی نہیں ہوتا، ایک بادشاہ کو عقل مند بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی سلطنت کو صحیح فیصلوں کے ساتھ چلا سکے۔ محل میں درباریوں کی کمی نہیں تھی۔ وزیر، مشیر، سپہ سالار، خزانہ دار سب اپنے اپنے عہدوں پر موجود تھے، لیکن بادشاہ کو اکثر محسوس ہوتا تھا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ صرف چاپلوسی کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے سامنے خوبصورت الفاظ میں باتیں کرتے، تعریفیں کرتے اور لمبے لمبے مشورے دیتے، مگر ان میں سچی دانش مندی کم ہی ہوتی۔ ایک رات بادشاہ اپنے محل کی بالکنی میں کھڑے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور محل کے باغ میں لگے درخت ہلکے ہلکے جھوم رہے تھے۔ بادشاہ نے آہ بھری اور اپنے خاص وزیر حماد سے کہا، حماد، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میری سلطنت میں عقل مند لوگوں کی کمی ہے۔ اگر میرے پاس سچے اور ذہین مشیر ہوتے تو شاید میری سلطنت اور بھی مضبوط ہو جاتی۔ وزیر حماد نے فوراً کہا، جہاں پناہ، آپ کے دربار میں دنیا کے سب سے ذہین لوگ موجود ہیں۔ بادشاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حماد، سچی بات یہ ہے کہ تم لوگ زیادہ تر وہی کہتے ہو جو میں سننا چاہتا ہوں، نہ کہ وہ جو مجھے سننا چاہیے۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح بادشاہ نے اچانک ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کے لیے جائیں گے۔ درباریوں کو یہ سن کر خوشی ہوئی کیونکہ انہیں لگا کہ بادشاہ کا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی قافلہ روانہ ہو گیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، سپاہیوں کی زرہ بختر کی جھنکار اور صبح کی ٹھنڈی ہوا سفر کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ کچھ گھنٹے سفر کے بعد وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ وہ جنگل بہت خوبصورت تھا۔ اونچے اونچے درخت، چہچہاتے پرندے اور دور کہیں بہتے پانی کی آواز ماحول کو پرسکون بنا رہی تھی۔ بادشاہ نے کچھ دیر وہیں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سپاہیوں نے خیمے لگا دیے اور درباری ادھر ادھر گھومنے لگے۔ اسی دوران بادشاہ کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک پرانا سا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے بوسیدہ تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خود ہی سے باتیں کر رہا تھا۔ کبھی وہ ہنستا، کبھی زمین پر لکیر کھینچتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ بولتا۔ درباریوں نے اسے دیکھا تو ہنسنے لگے، لگتا ہے کوئی پاگل ہے۔ مگر بادشاہ کو تجسس ہوا۔ انہوں نے گھوڑا آہستہ آہستہ اس شخص کی طرف بڑھایا۔ جب وہ قریب پہنچے تو اس شخص نے سر اٹھایا اور سیدھا بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے مسکرا کر کہا، میں ایک سلطنت کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ بادشاہ حیران ہو گئے، کیسی سلطنت؟ اس شخص نے جنگل کی طرف اشارہ کیا، یہ سارے درخت کاٹ دیے جائیں، یہاں محل بنائے جائیں، سڑکیں بنیں، بازار ہوں اور میں سب کا بادشاہ بنوں۔ درباری زور زور سے ہنسنے لگے۔ دیکھا، ہم نے کہا تھا نا یہ پاگل ہے۔ مگر بادشاہ خاموش رہے۔ وہ اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، لوگ مجھے فرید کہتے ہیں اور اکثر لوگ مجھے پاگل بھی کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اور تمہیں اس سے فرق نہیں پڑتا؟ فرید مسکرایا، لوگ اکثر اس چیز کو پاگل پن کہتے ہیں جسے وہ سمجھ نہیں پاتے۔ یہ جملہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے درباریوں کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اسے ہمارے ساتھ محل لے چلو۔ درباری چونک گئے، جہاں پناہ، یہ شخص پاگل لگتا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سب سے زیادہ عقل مند ہو۔ درباری مجبور ہو کر خاموش ہو گئے۔ فرید کو گھوڑے پر بٹھایا گیا اور قافلہ واپس روانہ ہو گیا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی شخص جلد ہی بادشاہ کی زندگی بدلنے والا تھا، اور اس کی وجہ سے محل میں ایسی ایسی سازشیں شروع ہوں گی جن کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کہانی ابھی شروع ہوئی تھی اور آگے کیا ہونے والا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ فرید کو محل لانے کے بعد محل کا ماحول بدلنے لگا تھا۔ درباری جو پہلے خود کو سب سے عقل مند سمجھتے تھے، اب ایک اجنبی شخص کو بادشاہ کے قریب دیکھ کر بے چین ہونے لگے تھے۔ محل کے بڑے دربار میں اس دن غیر معمولی خاموشی تھی۔ لمبے ستونوں والا وہ شاندار ہال جہاں روز دربار لگتا تھا، آج سب کی نظریں ایک ہی شخص پر ٹکی ہوئی تھیں، اور وہ تھا فرید۔ فرید دربار کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، بال اب بھی کچھ بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی عجیب سی مسکراہٹ موجود تھی۔ درباریوں کو اس کی شکل سے ہی چڑ ہونے لگی تھی۔ وزیر حماد نے دوسرے درباری کے کان میں آہستہ سے کہا، یہ شخص اگر زیادہ دن یہاں رہا تو ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ دوسرے درباری نے جواب دیا، فکر نہ کرو، ہمیں بس تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اسی دوران دربار کے دروازے کھلے اور اعلان ہوا، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔
सब दरबारी अपनी जगह सीधे खड़े हो गए। बादशाह सुलेमान शाह आहिस्ता आहिस्ता तख्त की तरफ बढ़े और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनकी नजर फौरन फरीद पर पड़ी। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, फरीद आगे आओ। फरीद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। बादशाह ने पूछा, तुमने महल में पहली रात कैसी गुजारी? फरीद ने आसपास के शानदार सतूनों और सुनहरी झाड़ फानूसों को देखा और बोला, महल खूबसूरत है, मगर यहाँ की हवा कुछ अजीब सी लगती है। दरबारियों के चेहरों पर नागवारी के आसार जाहिर हुए। बादशाह ने दिलचस्पी से पूछा, अजीब कैसे? फरीद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यहाँ लोग कम बोलते हैं मगर दिल में बहुत कुछ सोचते हैं। ये सुनकर दरबार में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखा। कुछ लोग नजरें चुरा रहे थे। बादशाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर दरबारियों के दिल में अब फरीद के खिलाफ हसद और बढ़ गया था। इसी शाम वजीर हमाद ने खुफिया तौर पर चंद दरबारियों को महल के एक कमरे में जमा किया। कमरे में रोशनी कम थी और दरवाजा अंदर से बंद था। वजीर हमाद ने गुस्से से कहा, ये आदमी हमारे लिए खतरा बन सकता है। अगर बादशाह ने इसे अपना खास मुशीर बना लिया तो हमारी हैसियत खत्म हो जाएगी। एक दरबारी ने कहा, तो फिर हमें इसे बादशाह की नजर में गिराना होगा। दूसरे ने पूछा, मगर कैसे? वजीर हमाद कुछ लम्हे सोचता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट आई। हम इसे ऐसा काम करने पर मजबूर करेंगे जिससे बादशाह इससे नाराज हो जाए। सब दरबारी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। वजीर हमाद ने कहा, फरीद सादा दिल लगता है, अगर हम उसे कोई अजीब सी रस्म बताएं तो वो यकीनन मान जाएगा। सबने इस मंसूबे पर इत्तेफाक किया। अगली सुबह फरीद महल के बाग में टहल रहा था। बाग बहुत खूबसूरत था। रंग बिरंगे फूल, फव्वारे और परिंदों की आवाज माहौल को खुशगवार बना रही थी। इसी वक्त वजीर हमाद और चंद दरबारी उसके पास आए। वजीर हमाद ने दोस्ताना अंदाज में कहा, फरीद भाई, महल की जिंदगी कैसी लग रही है? फरीद ने सादगी से कहा, लोग तो अच्छे हैं, मगर मुझे लगता है कुछ लोग मुझसे खुश नहीं। वजीर हमाद हंसा, अरे नहीं नहीं, आप तो अब दरबार के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। फिर वो आहिस्ता से बोला, वैसे क्या आपको दरबार की एक खास रिवायत के बारे में मालूम है? फरीद ने हैरत से पूछा, कैसी रिवायत? वजीर हमाद ने संजीदगी से कहा, हमारे दरबार में एक रस्म है कि जब कोई नया शख्स बादशाह के करीब आता है तो उसे दरबार की शुरुआत में बादशाह को एक हल्का सा थप्पड़ मारना पड़ता है। फरीद हैरान हो गया, थप्पड़ बादशाह को? वजीर हमाद ने फौरन कहा, ये एहतराम की अलामत है, इससे बादशाह को खुशी होती है। फरीद कुछ देर सोचता रहा। उसे ये बात अजीब तो लगी, मगर उसे लगा शायद वाकई महल की कोई रस्म हो। उसने सर हिला दिया, ठीक है, अगर यही रिवायत है तो मैं कर दूंगा। वजीर हमाद और दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें यकीन था कि अब फरीद खुद ही अपनी तबाही का सबब बनेगा, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि किस्मत कभी कभी ऐसे खेल खेलती है जिनका अंदाजा इंसान नहीं लगा सकता। अगली सुबह दरबार लगने वाला था और यही वो दिन था जिसके बाद महल की कहानी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह महल में गैर मामूली चहल पहल थी। बड़े दरबार का हॉल हमेशा की तरह शानदार नजर आ रहा था। सुनहरी सुतूनों के दरमियान लटकते हुए झाड़ फानूस रोशनी से चमक रहे थे। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठ रहे थे, मगर आज उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। खास तौर पर वजीर हम्माद और उसके साथी दरबारी बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि फरीद आएगा या नहीं। कुछ ही लम्हों बाद दरबार के दरवाजे खुले और फरीद अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही सादा सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे किसी चीज की फिक्र ही ना हो। वजीर हम्माद ने दूसरे दरबारी के कान में आहिस्ता से कहा, देखना, आज इसका खेल खत्म हो जाएगा। इसी वक्त दरबार के सिपाही ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। तमाम दरबारी खड़े हो गए। बादशाह सुलेमान शाह आहिस्ता आहिस्ता दरबार में दाखिल हुए और अपने तख्त की तरफ बढ़ने लगे। फरीद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे वजीर हम्माद की बात याद आ रही थी। दरबार की रस्म है, फरीद ने खुद से कहा। अगर यही रस्म है तो मुझे ये करना ही होगा। बादशाह तख्त के करीब पहुंचे और बैठने लगे। इसी लम्हे फरीद तेजी से आगे बढ़ा। पूरा दरबार हैरत से उसे देख रहा था। अचानक तड़ाक, फरीद का हाथ बादशाह के चेहरे पर पड़ा। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। दरबारियों के चेहरे खुशी से चमक उठे। उन्हें लगा कि अब फरीद की जिंदगी खत्म हो गई। सिपाहियों ने फौरन तलवारें निकाल लीं। वजीर हम्माद ने गुस्से के कहा, गुस्ताख, तुमने बादशाह पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की? मगर इसी लम्हे एक अजीब वाकया हुआ।
थप्पड़ की वजह से बादशाह का ताज सर से गिरकर जमीन पर जा पड़ा और जैसे ही ताज जमीन से टकराया, उसके अंदर से एक सया बिच्छू बाहर निकल आया। वो बिच्छू खतरनाक अंदाज में जमीन पर रेंग रहा था। सिपाहियों ने फौरन उसे मार दिया। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरत से ये मंजर देख रहा था। बादशाह कुछ लम्हों तक खामोश रहे। फिर उन्होंने जमीन पर पड़ा ताज उठाया और उसके अंदर देखा। वाकई ताज के अंदर बिच्छू छुपा हुआ था। बादशाह ने गहरी सांस ली। अगर वो ताज सर पर रखकर बैठ जाते तो बिच्छू उन्हें डस सकता था। बादशाह ने आहिस्ता आहिस्ता फरीद की तरफ देखा। सिपाही अभी भी उसे पकड़े खड़े थे। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, इसे छोड़ दो। सिपाहियों ने फौरन फरीद को छोड़ दिया। पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह तख्त से उठे और फरीद के करीब आए। कुछ लम्हों तक वो उसे गौर से देखते रहे। फिर अचानक बादशाह ने फरीद को गले लगा लिया। पूरा दरबार हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगा। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, इस शख्स ने मेरी जान बचाई है। दरबारी सकते में आ गए। बादशाह ने कहा, अगर फरीद मुझे थप्पड़ ना मारता तो मेरा ताज सर पर रहता और बिच्छू मुझे डस लेता। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। वजीर हम्माद का चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसकी सारी साजिश उल्टी पड़ चुकी थी। बादशाह ने हुक्म दिया, आज से फरीद सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि मेरा खास मशीर होगा। ये सुनकर दरबारियों के दिल में आग लग गई, मगर कोई कुछ कह नहीं सकता था। बादशाह ने मजीद कहा, और आज रात महल में एक बड़ी दावत होगी फरीद के एजाज में। फरीद अभी तक हैरान खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। रात को महल में शानदार दावत का एहतमाम किया गया। रोशनियों से सारा महल जगमगा रहा था। मौसीकी बज रही थी और मेहमान खुशी मना रहे थे। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, फरीद सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि किस्मत का चहीता इंसान है। मगर इसी वक्त दरबारियों के दिल में एक नया खौफ पैदा हो चुका था। वो समझ गए थे कि अगर फरीद इसी तरह बादशाह के करीब रहा तो एक दिन वो दरबार में सबसे ताकतवर शख्स बन जाएगा। इसी रात वजीर हम्माद ने दोबारा खुफिया मुलाकात बुलाई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, हमारी पहली चाल नाकाम हो गई मगर जंग अभी खत्म नहीं हुई। एक दरबारी ने पूछा, अब क्या करेंगे? वजीर हम्माद ने आहिस्ता से कहा, अब हम उसके लिए ऐसी आजमाइश तैयार करेंगे जिससे वो बच नहीं सकेगा। कमरे में खामोशी छा गई। दूर कहीं महल के घंटे बज रहे थे और फरीद, जो अभी तक अपनी किस्मत के इस अजीब खेल से बेखबर था, अपने कमरे में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। महल में फरीद की इज्जत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो अब सिर्फ एक मुशीर नहीं रहा था बल्कि बादशाह का सबसे काबिल एतमाद शख्स बन चुका था। बादशाह अक्सर अहम फैसलों में फरीद से मशवरा लेते और हैरान कुन तौर पर फरीद की बातें हमेशा दुरुस्त साबित होती। यही बात दरबारियों के दिल में जहर बनकर भर रही थी। वजीर हम्माद और उसके साथी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एक रात महल के एक खुफिया कमरे में फिर एक खुफिया इजलास हुआ। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक चिराग जल रहा था। वजीर हम्माद ने गुस्से से कहा, अब वक्त आ गया है आखिरी वार करने का। एक दरबारी ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? वजीर हम्माद ने आहिस्ता आवाज में कहा, हम फरीद को ऐसी जगह ले जाएंगे जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। सब उसकी बात गौर से सुनने लगे। हम पड़ोसी रियासत के बादशाह को जंग के लिए उकसाएंगे और मैदाने जंग में फरीद को खत्म कर देंगे। ये सुनकर सबके चेहरों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। चंद दिनों बाद दरबारियों ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी। उन्होंने खुफिया तौर पर पड़ोसी रियासत को पैगाम भेजा, अगर तुम हमला करो तो हम अंदर से तुम्हारी मदद करेंगे, बस एक शर्त है, फरीद को खत्म कर देना। दूसरी तरफ उन्होंने अपने बादशाह को भी जंग के लिए आमादा करना शुरू कर दिया। एक दिन दरबार में चंद लोग जख्मी हालत में लाए गए। उन्होंने चीख चीख कर कहा, बादशाह सलामत, दुश्मन हमले की तैयारी कर रहा है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। बादशाह परेशान हो गए। उन्होंने फौरन जंग का ऐलान कर दिया और सबसे बड़ा फैसला ये हुआ, फौज की कयादत फरीद को दी गई। दरबारियों के चेहरों पर छुपी हुई खुशी साफ नजर आ रही थी। उन्हें यकीन था कि अब फरीद की कहानी खत्म होने वाली है। चंद दिनों बाद फौज दुश्मन रियासत की सरहद पर पहुंच चुकी थी। घने जंगल के बीच दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं।
फिजा में खामोशी थी, मगर हर दिल में तूफान बरपा था। फरीद घोड़े पर सवार आगे आया। उसने बुलंद आवाज में कहा, सब रुक जाओ, पहले मैं खुद दुश्मन बादशाह से बात करूंगा। दोनों तरफ के सिपाही हैरान रह गए, मगर फरीद आगे बढ़ता गया। दुश्मन बादशाह भी अपने लश्कर के साथ सामने आया। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। अचानक झाड़ियों में जोरदार हरकत हुई और एक खूंखार शेर छलांग लगाकर दुश्मन बादशाह पर हमलावर हो गया। सिपाही घबरा गए, कोई कुछ समझ न सका, मगर फरीद ने एक लम्हा भी जाया ना किया। वो फौरन घोड़े से कूदा और शेर की तरफ लपका। एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। शेर कर्रा रहा था, पंजे मार रहा था, मगर फरीद पूरी बहादुरी से उसका मुकाबला कर रहा था। आखिरकार एक जोरदार वार के साथ फरीद ने शेर को मार गिराया। दुश्मन बादशाह जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। फरीद ने फौरन उसे उठाया और पानी पिलाया। ये मंजर देखकर दोनों फौजें हैरान रह गईं। दुश्मन बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, तुम मेरे दुश्मन हो, फिर भी मेरी जान बचा रहे हो। फरीद ने सुकून से जवाब दिया, मैं दुश्मनी नहीं, इंसानियत पर यकीन रखता हूँ। ये सुनकर दुश्मन बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन ऐलान किया, ये जंग खत्म, हम लड़ाई नहीं करेंगे। दोनों फौजों में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर इसी वक्त दुश्मन बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा, मगर इन दरबारियों को गिरफ्तार करो जिन्होंने हमें जंग पर उकसाया। ये सुनकर फरीद चौंक गया। उसने फौरन तलवार निकाली और कहा, खबरदार, किसी को हाथ न लगाना। सब हैरान रह गए। फरीद ने कहा, ये मेरे लोग हैं, इनकी गलती हो सकती है, मगर मैं इन्हें सजा नहीं दिलवा सकता। ये सुनकर दुश्मन बादशाह और भी मुतासिर हुआ। जब सब वापस महल पहुंचे, बादशाह ने फरीद का शानदार इस्तकबाल किया। पूरा शहर उसकी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, आज से फरीद सिर्फ मेरा मुशीर नहीं, बल्कि मेरी फौज का सिपाहसालार है। और फिर बादशाह ने अपनी बेटी की शादी भी फरीद से कर दी। दरबारी खामोश खड़े थे, उनके तमाम मंसूबे नाकाम हो चुके थे। कुछ वक्त बाद एक दिन वही बूढ़ा दरबारी जो सबसे समझदार था सबके सामने आया और बोला, हमने हसद किया, साजिशें की, मगर हम हार गए, क्योंकि सच्चाई, नेकी और अल्लाह का फैसला हमेशा जीतता है। सब दरबारी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने दिल से तौबा की। वक्त गुजरता गया। फरीद एक अजीम इंसान बन गया। उसकी हिकमत, बहादुरी और सच्चाई की मिसालें दी जाने लगी।